تو دہلی سے آنے والے جو قافلے ہوا کرتے تھے، ہندوستان سے جو قافلے آیا کرتے تھے، وہ اسی دروازے کے تھرو اس شہر میں، وال سٹی میں انٹر ہوا کرتے تھے۔ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی اور جس میں پورے ہندوستان سے لوگ شامل تھے، تو اس دوران جو جنگ و جدل ہوا، جو سلسلہ چلا، اس کی وجہ سے اس دروازے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ یہ کوتوالی نظام جو ہے در حقیقت ایک غلامانہ سوچ کا نتیجہ تھا، ایک غلام قوم کے اوپر مسلط کیا گیا نظام تھا۔ یہ گیٹ در حقیقت پہلا پرانا دہلی گیٹ ہوا کرتا تھا کہ اس کنویں کے لیے بہت ساری کھدائی کی گئی تھی، لیکن اس کھدائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس کے نیچے سے پانی نہیں نکلا تھا۔ مکھن اور پیڑے اور یہ تمام چیزیں بھرپور جو اس طرح کی غذا ہوتی ہے، کھانے کا دل کرے تو دہلی گیٹ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگمنٹری اور ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سعد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈورز آف لاہور سیریز کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور دروازے کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے لوہاری گیٹ اور بھاٹی گیٹ کے اوپر تفصیلی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اپنے چینل کے اوپر، اسے پہلے لازمی فالو کیجیے گا۔ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ کے اندر ناظرین جس عمارت کی اور جس دروازے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ دہلی گیٹ ہے۔ لاہور کے اگر جو بقیہ دروازے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ دروازہ ناظرین ان میں سے اس وقت سب سے زیادہ بہتر اور خوبصورت حالت میں موجود ہے۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس دروازے کے نام کے اوپر۔ اس کا نام ہے دہلی گیٹ، اور جو دہلی گیٹ اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس دروازے کا رخ انڈین جو ہمارا سٹی ہے دہلی، اس کی جانب ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک اور اگلا گیٹ جس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، کشمیری گیٹ، اس کا نام کشمیری گیٹ اسی لیے ہے کیونکہ اس کا رخ کشمیر کی جانب ہے۔ تو دہلی سے آنے والے جو قافلے ہوا کرتے تھے، ہندوستان سے جو قافلے آیا کرتے تھے، وہ اسی دروازے کے تھرو اس شہر میں، وال سٹی میں انٹر ہوا کرتے تھے۔ ایک اور بات جو اس دروازے سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس دروازے کا رخ یا اس دروازے کے جانب لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ قائم کیا گیا تھا انگریزوں کی جانب سے۔ تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے لیے جو قافلے جایا کرتے تھے، جو دیگر شہروں سے سفر کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، وہ بھی اسی آپ کے دہلی گیٹ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین اب ہم اس گیٹ کی ساخت کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک گیٹ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل عمارت ہے، اور اس عمارت کے 2 فلورز ہیں، 2 منزلیں ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر مختلف دکانیں موجود ہیں۔ اس کی چھت پر جانے کے لیے ایک باقاعدہ طور پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے مزید تو حالیہ دنوں میں اس دروازے کے اندر بہت سارے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ وال سٹی کی جانب سے اس کے اندر ایک شاپ بنائی گئی ہے جہاں پہ ہینڈ میڈ جو کرافٹ ہوتے ہیں وہ اس کو بنا کر اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور دروازے، اسی دروازے کے اندر ایک اور شاپ کے اندر یا ایک کمرے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ٹورزم کا دفتر ہے، اور اس ٹورزم کے دفتر کے اندر لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دروازے سے ناظرین کچھ اسپیشل قسم کے رکشے تیار کیے گئے ہیں، اور وہاں سے اس دروازے سے جو ہے وہ ٹور لے کر جو VIP مہمان آتے ہیں ان کو پورا اندرون لاہور کا وہ وزٹ کرواتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی مزید تاریخ کی تو 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی اور جس میں پورے ہندوستان سے لوگ شامل تھے، تو اس دوران جو جنگ و جدل ہوا، جو سلسلہ چلا، اس کی وجہ سے اس دروازے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ وہ دروازہ نہیں ہے جو مغلوں کے دور میں بنایا گیا تھا، یہ اس کے بعد کا بنایا گیا دروازہ ہے۔ اس جنگ میں اس دروازے کو اتنا نقصان ہوا کہ اس دروازے کو جو پہلے اس کی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا اسے ریموو کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جگہ پر یہ موجودہ جو آپ دروازہ دیکھتے ہیں اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور جس شخص نے اس دروازے کو تعمیر کیا تھا اس کا اگر نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو محمد سلطان ٹھیکیدار کا نام آتا ہے۔ اور محمد سلطان ٹھیکیدار جو ہے اس کا لاہور کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عمارات اسی شخص نے تعمیر کروائی تھیں۔ سلطان ٹھیکیدار کی حویلی بھی سنا ہے کہیں اندرون لاہور میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ناظرین میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو تھی زمزمہ توپ کے اوپر۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب زمزمہ توپ جنگوں میں استعمال ہونے کے بعد ختم ہو گئی اور اس کا کوئی استعمال نہ رہا، تو اس زمزمہ توپ کو اس دروازے کے باہر کافی عرصے تک نصب کیے رکھا تھا۔ ناظرین 2012 بتایا جاتا ہے کہ جب آغا خان
कल्चर जो फाउंडेशन है उसने नॉर्वे की जो हुकूमत है उसके साथ, उसके इश्तराक के साथ लाहौर वॉल सिटी के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने का आगाज़ किया और उसमें इस आप कह सकते हैं इस दरवाज़े की भी बहुत हद तक रेनोवेशन की गई। इसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स की इंतहा की गई थी उन्हें साफ़ किया गया, दरवाज़े को बहाल किया गया, बड़ी खूबसूरत शक्ल में इसको जो है वो वापस लाया गया। और अगर अब आप इसको देखें रात के वक्त तो ये इसके ऊपर रोशनियाँ जो हैं वो बिखेरी जाती हैं, जिससे इसकी जो लुक है रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। ये थी नाज़रीन इस इमारत के हवाले से, इस दरवाज़े के हवाले से तफसीलात जो मैंने आपके हमरा शेयर की। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में चलते हैं जहां आपको हमेशा मैं उस दरवाज़े से मुतालिक जो दीगर इमारतें जो उसके साथ मंसूब हैं या उसके अंदर वाक़ हैं या उसके करीब वाक़ हैं उसका ज़िक्र करता हूँ। अगर हम बात करें इसकी इमारतों की तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो ऑब्वियसली मस्जिद वज़ीर ख़ान है, लेकिन क्योंकि एक फ़ेमस स्पॉट है और मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि ऐसी इमारतों को हाईलाइट किया जाए जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, इसलिए हम दिल्ली गेट के अंदर मौजूद मस्जिद वज़ीर ख़ान हो या शाही हमाम हो इसका जिक्र नहीं करेंगे बल्कि दीगर इमारतों का जिक्र करेंगे। तो जो पहली इमारत यहाँ पर हमें देखने का मौका मिलता है वो है कोतवाली पुलिस स्टेशन। ये इमारत नाज़रीन दिल्ली गेट के बाहर जो चौक है उस चौक में वाक़ है और इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पुलिस स्टेशन है ये अंग्रेज़ों का बनाया गया पहला लाहौर का बाकायदा पुलिस स्टेशन था जिसे उस दौर में कोतवाल कहा जाता था। इसी कोतवाल के साथ ही एक लंडा बाज़ार भी है जहाँ पर आपको बहुत सारी जो वैराइटीज़ है वो सस्ते दामों मिल जाती है। इसी निज़ाम को फॉलो करते हुए जिसका नाम कोतवाली निज़ाम था नाज़रीन, कुछ अरसा कबल वॉल सिटी वालों ने 2 कोतवाली पुलिस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिंबल के तौर पर दिल्ली गेट के बाहर भी खड़े किए और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। लोगों को थोड़ी देर के लिए वो पुराना कल्चर जो है वो याद आया क्योंकि दिल्ली गेट के बाहर अंग्रेज़ों के दौर में भी इसी तरह के कोतवाली जो अहलकार हुआ करते थे वो तैनात किए जाते थे। जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादातर लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे अपने गम व गुस्से का इजहार भी किया क्योंकि उनका जो नैरेटिव था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनका नैरेटिव ये था कि ये कोतवाली निज़ाम जो है दर हकीकत एक ग़ुलामाना सोच का नतीजा था, एक ग़ुलाम कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया निज़ाम था जिसमें अंग्रेज़ सरकार जो है वो इन्हें हुक्म जारी करती थी और वो ज़ोर बाजू उसे इम्प्लीमेंट करवाते थे। तो ये ग़ुलामी की अलामत जो ख़त्म की गई थी इसे अलामती तौर पर भी दोबारा बहाल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पर वो कोतवाली पुलिस रोज़ाना खड़ी होती है अलामती तौर पर और उनका जो गेटअप है और उनका जो स्टाइल है बिल्कुल उसी तरह फॉलो किया गया है जैसा कि पहले अंग्रेज़ों के दौर में हुआ करता था। अगर दूसरी इमारत की या दूसरा हिस्सा इस जो दरवाज़े से मंसूब है उसकी बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो गली सोरजन सिंह है जो बिल्कुल दिल्ली गेट में जब आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे वाक़ है। हालिया दिनों में वॉल सिटी वालों ने इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में बहाल किया है, इसे बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया है और यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट पे इसकी जो पिक्चर्स हैं वो देखने का मौका मिलता होगा। जैसे ही इसकी रेनोवेशन हुई थी तो इसकी जो पिक्चर्स हैं वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और हज़ारों की तादाद में लोग चंद ही दिनों में इसे देखने के लिए आ गए थे। वॉल सिटी वालों ने इसको काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सजा रखा है। पिक्चर यहाँ पर अगर आपने खिंचवानी है तो आपकी बहुत खूबसूरत तस्वीर इस जगह पर आती है। नाज़रीन, जब आप इस शाही गुज़रगाह से गुज़र कर आगे आते हैं तो आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा पुराना सा स्ट्रक्चर आपको देखने का मौका मिलता है और ये भी एक गेट ही की शक्ल में बनाया गया था किसी दौर में। अब हम इसकी बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस गेट नुमा इमारत की बात करेंगे। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि ये गेट दर हकीकत पहला पुराना दिल्ली गेट हुआ करता था। इसे बाद में जो है वो अंग्रेज़ों ने तकरीबन 100 मीटर इससे आगे जो मौजूदा गेट है उसको तामीर किया था। और इस गेट का अगर नाम आपसे शेयर किया जाए तो इस गेट को आजकल और तारीख़ में भी इसे चिटा गेट यानी वाइट गेट कहा जाता है। अब चिटा गेट इसे क्यों कहा जाता है? अजम्पशन यही है कि शायद इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सफ़ेद मार्बल किसी दौर में लगा होता होगा और जो बाद में हटा दिया गया, लेकिन अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आ चुका है। नाम अभी तक इसका चिट्टा गेट ही है। अब अगर इस दरवाज़े से मुतल्लिक अहम शख्सियात की बात की जाए
तो जो एक अहम शख्सियत हमें जानने का मौका मिलता है तारीखी किताबों में, वो राजा दीनानाथ है। राजा दीनानाथ बहुत असर रसूख रखने वाली शख्सियत का नाम था और लाहौर के अंदर इसी दिल्ली गेट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन उनके नाम से मंसूब हैं, वो भी आपके हमरा शेयर करते हैं। इसी चौक वज़ीर खान के अंदर, बिल्कुल चौक में अगर आप खड़े हों तो वहाँ पर आपको एक साइड पे एक कुआं नज़र आता है, एक छोटी सी हट नुमा इमारत नज़र आती है। इस इमारत को राजा दीनानाथ का कुआं कहा जाता है और इस कुएं की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। इस कुएं के हवाले से नाज़रीन एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और वो ये है कि इस कुएं के लिए बहुत सारी खुदाई की गई थी, लेकिन उस खुदाई का कोई नतीजा नहीं निकला, इसके नीचे से पानी नहीं निकला था। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें दीनानाथ की, तो दीनानाथ की हवेली भी नाज़रीन इस चौक से करीब ही वाक़ है, जो कि अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन, ये थी तमाम मालूमात जो कि दिल्ली गेट के हवाले से आपके हमरा शेयर की। अब लाइटर मूड के लिए एंड पे हम ऐड करते हैं अपने फूड की 2 आइटम्स। पहली अगर चीज़ जो दिल्ली गेट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त मिलती है और बड़ा टेस्ट करने के जो है वो काबिल है, वो अगर आप दिल्ली गेट से आप एंटर होते हैं और थोड़ा सा आगे जाएं तो आपके राइट साइड पे एक मौलवी साहब एक रेडी लगा के बैठे होंगे, और ये बड़े ही ज़बरदस्त जो पेड़े होते हैं, मक्खन के पेड़े जिसको आप कहते हैं, वो तैयार करते हैं। उसके ऊपर शक्कर डालते हैं और उसके साथ जो एक चाटी की लस्सी होती है वो एक मुहैया करते हैं। अब लाहौर में इस चीज़ का कल्चर बहुत कम हो चुका है, बहुत कम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपका मक्खन और पेड़े और ये तमाम चीज़ें भरपूर जो इस तरह की ग़िज़ा होती है खाने का दिल करे, तो दिल्ली गेट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त मिलती है और लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं और मेरी बड़ी फेवरेट है, वो यही वज़ीर खान मस्जिद का जो चौक है उसके साथ एक पतली सी गली आपको राइट साइड पे लेके जाती है। किसी से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हीरो टिक्कियाँ वाला कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके पास आप जाएं, उससे आप टिक्कियाँ ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो लाजमी उसको टेस्ट करता हूँ। ये दोनों आइटम्स दिल्ली गेट के अंदर मेरी फेवरेट हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साद जाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।